Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start from company account issue of debenture chapter for class 12. Here we do some questions, different topics. I have been taken from company's account. Chapter is issue of debenture. So without wasting the time, let's start it. There are miscellaneous questions where different kind and different types of questions we have been discussed in this video. So let's start it without wasting the time, right? So for class 12 company account issue of debenture, class 12th. Now question is, on 1st April 2019, Bright Limited issued 4 lakh 6% debenture of rupees 100 each at a discount of 5%, redeemable after 3 years. The amount per debenture was payable as follows. On application, rupees 80 per debenture, and on allotment, balance. Right? Debenture were fully subscribed and all the money has been duly received. Now pass the journal entry for the issue of debenture. इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2019 में ब्राइट लिमिटेड ने 4 लाख डिबेंचर्स इशू किए हैं. पर डिबेंचर 100 रुपीज़ कॉस्ट है. 6% डिबेंचर है वो, उस पर डिस्काउंट है 5%. रिडीम किया गया 3 ईयर्स के बाद. जो अमाउंट पर डिबेंचर्स था हमारा, पर डिबेंचर अमाउंट जो पे किया गया एप्लीकेशन पर 80 रुपीज़ है और अलॉटमेंट पर जो बैलेंस है. राइट, इट्स अ नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश. In that case, how we pass the journal entry, let's see. Take a screenshot of the question, then moving to the solution part. Now our first entry would be bank account debit to debenture application account. Right? How many number of debentures has been issued by the company? 4 lakh. So you have to multiply it by 4 lakh multiplied by 100. No, it's 80. एप्लीकेशन पर 80 रुपीज़ है. राइट, 3 crore 20 lakh has been shown in the debit side and the same amount has been shown in the credit side as well. Right, and by narration you will write application money received on 4 lakh 6% डिबेंचर्स. क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन पर कॉल थी वो 80 रुपीज़ पर डिबेंचर थी और डिबेंचर एप्लीकेशन के टाइम पर जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई वो 4 लाख डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग हुई थी. तो जब हमें अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक को हम डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. अमाउंट आपका जाएगा 3 crore 20 lakhs डेबिट में एंड क्रेडिट में. एंड नरेशन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4 lakh 6% डिबेंचर. जो आपको एप्लीकेशन के टाइम पे अमाउंट रिसीव हुआ है अब आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में. इशू ऑफ शेयर चैप्टर में हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे. तो हमारी जो सेकंड एंट्री बनेगी वो बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट. And same amount has been transferred as in the previous entry has been transferred 3 crore 20 lakhs
same manner you have to write. And now the narration would be application money adjusted. Application money adjusted, right? Now moving to the next third entry. Third entry would be debenture allotment account debit. डिस्काउंट पर था तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट. 100 रुपीज़ पर डिबेंचर था जिसमें 80 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन के, तो बैलेंस आपके 20 रुपीज़ बचे. बट क्योंकि 100 रुपीज़ का अगर एक डिबेंचर था 5% पर डिस्काउंट था तो 5 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट हुआ. तो यहाँ तो आप 20 से ही मल्टीप्लाई करोगे. 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख डिबेंचर. अब डिस्काउंट 5 रुपीज़ है तो 5 इंटू 4 लाख. एंड हेयर वी विल राइट 15 इंटू 4 लाख, राइट. सो 60 लाख हेयर, 20 लाख हेयर एंड 80 लाख हेयर. एंड नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, allotment money due at the rate ₹15 each. Right? Now next entry would be debenture allotment पर जो हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, allotment मनी जो रिसीव्ड हुई थी. अगेन जब अमाउंट रिसीव्ड होगा तो बैंक को हम डेबिट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर allotment account, same 60 lakh and 60 lakh, right? And in narration we will write allotment money received, allotment money received. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इजी, जिसमें डिबेंचर को इशू किया गया था कैश के लिए. एप्लीकेशन पर 80 रुपीज़ मंगवाए थे, अलॉटमेंट पर बैलेंस था, और क्वेश्चन में जो डिस्काउंट था वो क्वेश्चन में जो डिबेंचर इशू किए गए थे, डिस्काउंट पे किए गए थे, उसका ट्रीटमेंट थर्ड एंट्री में हमने किया है, राइट. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी विल डू इन दिस वीडियो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ द सेम चैप्टर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरगम लिमिटेड issued ₹1 lakh 6% debenture of ₹10 each at a premium of ₹2 per debenture on 1st April 2012. The issue was fully subscribed. The issue was fully subscribed. The issue was fully subscribed. Interest will be paid at the end of each financial year. Now pass the journal entry for the year 12 and 13. सरगम लिमिटेड ने 1 लाख अमाउंट जो था उस पर डिबेंचर इशू किया था. एक डिबेंचर 10 रुपीज़ का था, यानी कि 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स रहे होंगे. पर डिबेंचर 2 रुपये का प्रीमियम था. जितना भी इशू किया गया था फुली सब्सक्राइब था. इंटरेस्ट को पे किया गया फाइनेंशियल ईयर के एंड में, राइट. तो हम जो एंट्री करेंगे वो क्या होगी, हमारी एंट्री जो होगी वो 1 अप्रैल 2012 में जो होगी, पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितने से होगी, क्योंकि प्रीमियम पर है तो 2 रुपीज़ प्रीमियम है, 10 रुपीज़ पर डिबेंचर था तो 12 रुपीज़ हो गया, और नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स 10 होंगे.
तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो हमारा आएगा 1,20,000। 1,20,000 हम डेबिट में लिखेंगे और 1,20,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। सेकेंड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये हम लिख सकते हैं नरेशन में। सेकेंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का समअप करके नरेशन लिखेंगे। डिबेंचर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 है, हम यहाँ पर 12 से करेंगे तो 6% डिबेंचर में कितना करेंगे 10,000 इंटू 10, और SPR में कितना करेंगे 10,000 इंटू 2, राइट। तो यहाँ पर डेबिट में आप लिखेंगे 1,20,000, यहाँ आप लिखेंगे 1 लाख और यहाँ आप लिखेंगे 20,000। तो इस तरीके से हमारी एंट्री होगी। ये हमने की है 1 अप्रैल 2012 में। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए भी बोला गया है तो 31 मार्च 2013 में जो हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट की, वो देख लेते हैं कि हम एंट्री क्या करेंगे इंटरेस्ट के लिए। तो हमारी 31 मार्च 2013 में जो थर्ड एंट्री होने वाली है वो हमारी होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, राइट। हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे 10,000, उसका 6% कितना हुआ 600। 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आएगा 6,000। तो 6,000 इंटरेस्ट डेबिट में और 6,000 इंटरेस्ट क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी जब हम उसकी पेमेंट करेंगे, वो ड्यू की थी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट ड्यू है उसकी पेमेंट होगी सेम अमाउंट 6,000 डेबिट में और 6,000 क्रेडिट में, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी, हम डिस्काउंट को किसके थ्रू राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के थ्रू। तो हम लास्ट एंट्री करेंगे जो रिटर्न ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट same by 6,000 debit and 6,000 credit. In this manner we will solve the question, right? So जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश था। जो हमने नेक्स्ट किया उसमें हमने लमसम किया और प्लस इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री की। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें हम रिडम्पशन के केसेस को देखते हुए करेंगे। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ दिस वीडियो वी विल डू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम चैप्टर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fena Limited issued rupees 7 lakh 12% debenture of rupees 100 each at a premium of 5%, redeemable at a premium of 20%, Now you have to pass the necessary journal entry at the time of issue of debenture, right? फेना लिमिटेड ने अगर ये 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है तो हमारे 7,000 नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए और प्रीमियम उस पर 5% रिडम्पशन प्रीमियम है एंड उसको रिडीम प्रीमियम 20% किया गया है। तो पहली एंट्री जो हमारी होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें 5% का आपका प्रीमियम एड ऑन है। अगर मैं बात करूं 7,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं 105 के साथ क्योंकि 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, राइट। तो ये हमारा अमाउंट कितना आएगा 7,35,000।
तो 735,000 हम डेबिट में लिखेंगे और 735,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। अब सेकेंड एंट्री करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो एक बार देखिएगा। सेकेंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit, loss on issue of debenture account debit to 12% debenture account to security premium reserve account to premium on redemption of debenture account। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो हमने अमाउंट लिखा था पहले 735,000 वो हम लिखेंगे, क्लियर है। उसके अलावा 20% का आपका प्रीमियम था। 7 लाख का 20% कितना होगा, 1,40,000, तो 1,40,000 आप यहाँ भी लिखेंगे और 1,40,000 आप इधर भी लिखेंगे, राइट। अब एक्चुअल में जो प्रीमियम का अमाउंट था वो 35,000 था, तो यहाँ कितना जाएगा, 7 लाख जाएगा। इस तरीके से हमारा अमाउंट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अमाउंट जो था डिबेंचर का वो 7 लाख था। 7 लाख का अगर मैं 5% निकालूंगी तो वो 35,000 आएगा। तो 12% डिबेंचर में तो हमने सीधे सीधे 7 लाख लिख दिया, उसका 5% जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो हमने 35,000 लिख दिया, तो वो दोनों यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट कंबाइन करके लिख दिया गया। अब जो प्रीमियम पर रिडम्पशन हुआ है 20%, 7 लाख का 20% कितना होगा, 1,40,000, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर हम क्रेडिट में लिखेंगे, और जो कैपिटल लॉस हुआ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो भी हम यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें रीज़न आपको पता होगा कि जब डिबेंचर को रिडीम किया जाता है प्रीमियम पर तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट करते हैं, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री होती है, राइट। नाउ moving to the next question. Now moving to the next question. Aishwarya Limited. Aishwarya Limited Aishwarya Limited issued 7,000 10% debenture of ₹1,000 each at a discount of 10%. At a discount of 10%. Redeemable at a premium. Redeemable at a premium of 5% after 4 years. According to the term. According to the term of issue, according to the term of issue, rupees 300 was payable. Rupees 300 was payable on application, and balance, this is application, and balance on allotment of debentures. Now record the necessary journal entry regarding issue of 10% debenture, right? ऐश्वर्या लिमिटेड ने 7,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इशू के 10% के हिसाब से एक डिबेंचर 1,000 रुपीज़ का था, 10% डिस्काउंट पर रिडीम किया गया 5% के डिस्काउंट पर आफ्टर 4 ईयर्स। अब इस टर्म ऑफ इशू के अकॉर्डिंग 300 was payable on application and balance on allotment. Now you have to pass the journal entry. So our first entry would be bank account debit. Bank account debit to debenture application account. This is the basic first entry we have to pass. Now here the number of debenture is 7,000. We have to multiply it by 300 because 300 has been payable on application. So here the amount would be 21 lakh in debit side and 21 lakh in the credit side, right? And the narration would be same as we have discussed in earlier questions also. Application money received on 7,000 10% debenture at the rate 300 each. This is our first entry, right? Take a screenshot of this slide. Moving to the next slide for the second entry, right?
So the second entry would be debenture application, account debit to 10% debenture. Same amount has been here also, right? 21 lakh in debit side and 21 lakh in credit side, right? And the narration would be application money adjusted, application money adjusted. Now the next entry would be debenture allotment, account debit, loss on issue of debenture account debit to 10% debenture account to premium on redemption of debenture account, right? 300 has been payable on application, the remaining would be 700. So 700 would be in balance on allotment of debentures, right? So 7,000 is the number of debentures, 700 was payable on allotment. So here the amount would be 49 lakh. I hope it is clear to you. And 10 जो डिस्काउंट था वो 10% था, राइट? तो उसको एक बार देख लीजिए किस तरीके से हम करेंगे. सी, जो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर थे वो थे 7,000, राइट? आपका जो पर डिबेंचर था वो था 1000. डिबेंचर जो डिस्काउंट पर इश्यू हुए थे 10% के अकॉर्डिंग वो आए थे हमारे 100, राइट? और अगर प्रीमियम के हिसाब से देखें तो प्रीमियम था 5%. तो 1000 का 5% हम निकालेंगे तो आएगा 50. तो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में हम अमाउंट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में हम करेंगे 7,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 50. तो हमारा टोटल कितना आएगा? 10,50,000. ये हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में लिखेंगे डेबिट साइड में, राइट? और डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? 49 लाख में से 10,50,000. और प्रीमियम कितना है हमारे यहाँ पे? 3,50,000. तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 42 लाख लिखेंगे. 42 लाख कैसे आया? 42 लाख के लिए आपको 49 लाख में 3,50,000 प्लस करना है, 10,50,000 माइनस करना है, तो आपको 42 लाख आ जाएगा. क्लियर है? और जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी लास्ट, वो देख लीजिए क्या होगी. जो हमारी फोर्थ एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि 42 लाख होगा. 42 लाख आपका डेबिट में होगा और 42 लाख आपका क्रेडिट में होगा. और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड. अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, राइट? एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड invited applications for 1,000 9% debenture of rupees 100 each at a discount of 6%. Now application for 1,200 debentures were received. Now pro rata allotment was made to all the applicants. Now you have to pass the necessary journal entry for the issue of debenture, assuming that the whole amount was payable on with the application, right?
तो एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशंस 1000 डिबेंचर्स के लिए 9% डिबेंचर और 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट 6% है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 1200 हुई, तो वो सब्सक्रिप्शन हुआ तो उसको प्रोराटा हमें करना है, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी? पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब है तो 1200 से करेंगे एंड मल्टीप्लाई 94 से होगा। क्यों? क्योंकि 6% का आपका डिस्काउंट है और 100 का 6% 6 होता है। अमाउंट जो हमें रिसीव होगा वो 94 के हिसाब से हुआ होगा, तो ये होगा 112800 इन द डेबिट साइड एंड 112800 इन द क्रेडिट साइड, राइट। एंड द नरेशन वुड बी एप्लीकेशन मनी received, application money received on 1200 debentures, 1200 debentures at the rate of rupees 94 each, right. Now moving to the next entry, the second entry would be, now the second entry would be debenture application and allotment account debit, discount on issue of debenture account debit to 9% debenture account to bank account. If question is stated nothing, then the extra amount has been refunded or rejected, right. So debenture application allotment में the same amount will be transfer 112800 which we have been passed in the previous entry, and discount would be, as you know, the number of debenture is 1000 and discount is 6, so 6000 हम डेबिट में करेंगे एंड क्रेडिट में हम करेंगे 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू 100 दैट इज़ 1 लाख, एंड जो एक्सेस में हमें मिला था 200 वो हम रिटर्न कर देंगे 94 के हिसाब से, दैट इज़ 18800, राइट। एंड द नरेशन वुड बी 1009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच allotted on prorata basis, and application money for 200 debentures refunded. 200 debentures were refunded. By this narration we will complete the question, right. Always remember, when question require entries for the issue of debenture, thus the entry for writing of discount on issue of debenture is not passed. It always be remembered, right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ZK Limited issued rupees 4 lakh 9% debenture of rupees 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 10%. Now you have to pass the necessary journal entries for the above transactions in the book of ZK Limited. जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी? वो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 4 लाख अमाउंट है, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 4000 नंबर ऑफ डिबेंचर हो जाएंगे। 4000 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 95 से, क्योंकि 5% का आपका डिस्काउंट है। तो 95 से आप करेंगे इसको 4000 मल्टीप्लाई बाय 95। Just a minute, let me check. Yeah, the amount would be 3,80,000 in the debit side and 3,80,000 in the credit side. And narration would be debenture application money received, right? Now second entry would be debenture application and allotment
अकाउंट डेबिट आप एक साथ भी कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख रही हूँ, और जो रिडीम हो रहा है वो भी मैं अलग से लिख रही हूँ। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का कंबाइंडली अमाउंट जो होता है वो भी आप लिख सकते हो। टू 9% डिबेंचर, to 9% debenture account, to premium on redemption of debenture, to premium on redemption of debenture account, right? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आपने 3,80,000 लिखा है तो आप यहाँ पर भी 3,80,000 लिखेंगे, राइट? आपका जो डिस्काउंट है वो 5% है। आप 4,000 को 5 से करेंगे तो 20,000 आएगा। फिर आप 4,000 को आप 10 से करेंगे तो 40,000 आएगा। और 9% डिबेंचर में आप 4 लाख लिखेंगे क्योंकि वो पूरा का पूरा आपका 100 है। और यहाँ पे आपने 40 लिखा है तो यहाँ पर भी आप 40 लिखेंगे, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, राइट? और नरेशन में आप लिखेंगे 9% डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट redeemable at 10% premium, right? Here is the another alternative cases where we have to pass the entry. मैं इसका alternative entry भी जो है आपको बता देती हूँ. So take a screenshot of this slide. Moving to the alternative case. So the alternate entry would be debenture application and allotment account debit, loss on issue of debenture account debit, to 9% debenture account, to premium on redemption of debenture account. सो इधर तो 3,80,000 आएगा। हमने प्रीवियस एंट्री में 20 और 40 किया था, 20 डिस्काउंट में, 40 लॉस ऑन इश्यू में, तो यहाँ पर दोनों का कंबाइन 60 लिखेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 9% डिबेंचर में 4 लाख जाएगा एंड 40,000 आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जाएगा। एंड नरेशन में लिखेंगे 9% डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट redeemable at 10% premium. This is the alternative for entry for the previous part. So here we have been discussed issue of debenture for cash. उससे related जो different kind of questions थे वो हमने discuss किए. In the next part we will do issue of debenture for consideration other than cash, right? Then issue of debenture as collateral security, then interest on debenture, then miscellaneous question we have to discuss. After that, in 1 or 2 videos, we will complete the whole combined questions, right? So if the video will be easily understandable by you, then like करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।